میں محمد دلشاد 8ویں جماعت کے نصاب میں شامل گلشن اردو کا 11واں سبق لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کے سبق کا عنوان ہے دو دوست۔ اس سبق میں ہم پڑھیں گے دو دوستوں کی کہانی۔ ایک دوست جو یعنی ساتھ رہتے ہوئے دونوں لوگ پڑھائی کرتے ہیں، ایک غریب بھی رہتا ہے اور ایک آگے چل کر امیر بن جاتا ہے، راجہ بن جاتا ہے، اور پھر ان دونوں کی ملاقات کس طریقے سے ہوتی ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ ایک دبلا پتلا غریب آدمی کئی جگہ سے پھٹا سلوکا اور میلی سی دھوتی پہنے محل کے پھاٹک پر کھڑا ہے۔ دربان بھکاری سمجھ کر اسے جھڑک دیتا ہے۔ وہ آدمی کہتا ہے مجھے راجہ سے ملنا ہے، لیکن دربان نہیں مانتا۔ راجہ کسی کام سے باہر آتے ہیں اور اس دبلے پتلے آدمی کو دیکھ دوڑ کر اسے لپٹا لیتے ہیں۔ وہ راجہ شری کرشن اور اس آدمی کا نام سداما ہے۔ شری کرشن دوارکا کے راجہ اور سداما قریب کے ایک گاؤں کا غریب برہمن ہے۔ یہ دونوں بچپن کے دوست تھے، ساتھ کھیلے اور ساتھ پڑھے۔ کرشن جی دوارکا کے راجہ بنے اور سداما غریب ہی رہا۔ پڑھانے لکھانے یا مذہبی رسوم ادا کرنے کے علاوہ وہ کوئی کام نہیں کر سکتا تھا۔ آمدنی کا کوئی مناسب ذریعہ نہیں تھا۔ سداما کی بیوی سداما سے کرشن جی کے پاس جانے کی برابر ضد کرتی، لیکن سداما ٹالتے رہے۔ جب سداما کی بیوی نے بہت اصرار کیا مطلب ضد کی، تو وہ بولا میں خالی ہاتھ کیسے جاؤں، لے جانے کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ سداما کی بیوی پڑوس سے پاؤ بھر کٹے ہوئے چاول ادھار لے آئی، ایک کپڑے میں پوٹلی باندھ کر شوہر کے حوالے کر دی اور کہا کہ اب یہ تحفہ لے جاؤ، کرشن جی سے ملو، اگر راجہ اچھا ہے تو تمہیں پہچان لے گا اور ہماری کچھ مدد کریں گے۔ محل پہنچ کر سداما پریشان تھے کہ راجہ سے ملنا کیسے ہو، کہ راجہ نے خود دیکھ لیا اور انہیں اندر لے گئے۔ سداما چاول کی پوٹلی کرشن جی کو دینے میں جھجک رہے تھے، لیکن چھپانے پر بھی پوٹلی کرشن جی کو نظر آ گئی اور وہ بولے بھابھی نے کیا بھیجا ہے اس پوٹلی میں۔ کرشن جی نے پوٹلی کھولی تو وہ سوکھے چاول تھے۔ وہ ان چاولوں کو کھانے لگے جیسے یہ ان کی مرغوب غذا ہو۔ مرغوب کہتے ہیں پریفرڈ یعنی پسندیدہ، غذا کہتے ہیں خوراک یعنی ان کی فیوریٹ فیڈ ہو یا فیوریٹ خوراک ہو۔ سداما راجہ کے مہمان تھے، انہیں گھر واپس جانے کی اجازت نہیں تھی۔ وہ اچھا کھانا کھاتے، عزت سے رہتے، لیکن اپنے بیوی اور بچوں کو بری حالت میں چھوڑ کر آئے تھے۔ اسی وجہ سے پریشان تھے۔ کئی دن گزر گئے، بہت اصرار کیا تو جانے کی اجازت مل گئی۔ سداما کو امید تھی جاتے وقت کرشن جی ضرور انہیں کچھ دیں گے، لیکن کرشن جی نے انہیں رخصت کرتے ہوئے کچھ بھی نہ دیا۔ سداما سوچ رہے تھے میں نے تو کئی دن ٹھاٹھ سے گزارے، لیکن بیوی بچوں پر ان دنوں کیا گزری ہوگی۔ بیوی نے بہت اصرار سے بھیجا تھا، دوست کچھ نہ کچھ مدد کرے گا۔ وہ بہت شرمندہ تھے۔ آخر چلتے چلتے خالی ہاتھ اپنے گاؤں میں اسی جگہ پہنچے جہاں ان کی جھونپڑی تھی، لیکن جھونپڑی نہ دکھائی دی۔ اس جگہ پر ایک عالی شان محل کھڑا تھا۔ سوچنے لگے کسی غلط جگہ آ گئے ہیں، واپس جانے کی سوچ رہے تھے۔ اسی وقت ان کا ایک بچہ اس شاندار مکان سے باہر آیا۔ اس نے باپ کو دیکھا تو دوڑ کر اندر گیا اور ماں کو بتایا۔ بیوی اور سب بچے باہر نکل آئے۔ سداما حیران ہوئے۔ سداما نے بیوی سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، ہماری جھونپڑی کہاں گئی اور شاندار مکان؟ بیوی نے بتایا یہ مکان شری کرشن جی نے اپنے آدمی بھیج کر بنوایا ہے، بہت سی دولت، کپڑے اور زیور بھیجے ہیں۔ ہماری تو 7 پیڑھیاں کھائیں تو یہ دولت ختم نہ ہوگی۔ تم تو کہتے تھے وہ راجہ مجھ غریب کو کیا پہچان سکیں گے، کہو اس نے دوستی کو کیسے نبھایا۔
महाराज श्री कृष्ण और गरीब सुदामा की दोस्ती। मश्क, यहाँ अल्फाज माना देख लें। लफ्ज़ दरबान, इसका माना है चौकीदार, चौकीदार। मजहबी रसूम, मजहबी तौर तरीक़े। पीढ़ियाँ, इसका माना है नस्लें। इसरार मतलब माना इसका ज़िद, मरगूब पसंदीदा या अच्छा। नंबर 1, अब बताइए, यहाँ कुछ सवालात हैं जिनके जवाब आप देना है। नंबर 1, सुदामा दरबान सुदामा को अंदर जाने से क्यों रोक रहा था? नंबर 2, सुदामा को महल के अंदर कौन ले गया? नंबर 3, कृष्ण जी कहाँ के राजा थे? नंबर 4, सुदामा अपने गांव पहुंचकर क्यों हैरान हुए? नंबर 4 और नंबर 5 देखें, कृष्ण जी ने दोस्ती का हक किस तरह निभाया? तो इनके जवाब आप सबक को पढ़ लें, उसको देखें और आसानी से दे सकते हैं। नंबर 2 में देखें, अलिफ, हिस्सा अलिफ है, दर्ज झैल अल्फाज से खाली जगह पुर कीजिए। कुछ अल्फाज दिए गए हैं और उन अल्फाज से आपको खाली जगह पुर करनी है। पहला जुमला है, कृष्ण जी ने खोली तो चावल थे। क्या खोली? इसरार या पोटली या हैरान? तो आप कोई एक इसमें लिख सकते हैं। बीवी और बच्चे शानदार मकान से बाहर निकल आए। सुदामा इसरार थे, पोटली थी या हैरान थे? यहाँ जो भी वर्ड आएगा वो आप लिख सकते हैं। बीवी ने बहुत इसरार से भेजा था, पोटली से भेजा था या हैरान से भेजा था? जो लफ्ज़ यहाँ आएगा वो आप उसे लिख सकते हैं। नंबर यानी उसी में नंबर 2 में जो हिस्सा बे है उसको देखने, जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। जुमलों में इस्तेमाल करने का मतलब क्या है? जुमला कहते हैं वाक़े यानी सेंटेंस को, और ये अल्फाज जो हैं गरीब, मेहमान, हैरान, मरगूब, बरहमन, इन अल्फाज को हमें इस तरीके से इस्तेमाल करना है कि कोई सेंटेंस बन जाए, कोई जुमला बन जाए। कह सकते हैं मिसाल के तौर पर, गरीब को अगर हम इस्तेमाल करना चाहें तो हम कह सकते हैं लोग आज बहुत गरीब होते जा रहे हैं। ये भी बोल सकते हैं कि गरीब लोग और गरीब होते जा रहे हैं। ये भी बोल सकते हैं कि गरीब लोग परेशान हो रहे हैं, वो लड़का गरीब है, वो इंसान गरीब नहीं है। इस तरह से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरे अल्फाज को भी ऐसे ही इस्तेमाल करने की कोशिश करें। नंबर 3 में देखें, कवायद। यहाँ इसमें यानी कवायद के जो पोर्शन है इसमें हम पढ़ेंगे कुछ अलामतों के बारे में। अलामत क्या होता है? अलामत एक लफ्ज़ ये देख लें, अलामत का माना होता है मार्क, साइन, पहचान, निशान। तो कुछ निशान हम पढ़ते हैं उर्दू में, और उन निशानात को हम पहचानने की कोशिश करेंगे कि ये क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं, उनके नाम क्या होते हैं और उन्हें कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले नंबर पे है ख़त्मा। ख़त्मा, इसे इंग्लिश में फुल स्टॉप भी कहा जाता है, और इसकी पहचान देख लें, इसको देख लें, इसकी शक्ल ये होगी, लास्ट में जो दिया है गया के बाद ये, तो इसको हम ख़त्मा कहते हैं, और इंग्लिश में इसको फुल स्टॉप। नंबर 2 देख लें, सवालिया, यानी सवालिया पहचान होती है। तो इसमें इसकी तारीफ़ क्या है? ख़त्मा ये अलामत जुमले के ख़ात्मे पर लगाई जाती है, जैसे हामिद स्कूल गया, मैं खाना खा चुका वगैरह। ये जुमले हैं, इनके आगे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 2 में देखें, सवालिया। सवाल के आखिर में ये अलामत लगाई जाती है, जैसे ये क्या है, तुम कहाँ गए थे। तो क्वेश्चन मार्क जिसे हम कहते हैं, ये सवालिया अलामत है। मार्क अलामत निशान को कहा जाता है।
नंबर 3 में देखें वोवेन, जब कोई इक़्तिबास दिया जाता है या किसी का कौल उसके अल्फाज में नकल किया जाता है तो उसके अव्वल आखिर में वोवेन की अलामत लगाई जाती है। ये जो है वो वोवेन है, जिसे हम इन्वर्टेड कॉमा कहते हैं। जैसे अब जाओ और कृष्ण जी से मिलो, अगर राजा अच्छा है तो तुम्हें पहचान लेगा। ये पूरी एक बात थी जो सुदामा की बीवी ने कही थी। उस पूरी बात को, उनके पूरे कॉल को यहाँ लिख दिया। जब किसी की बात को, किसी के कॉल को, किसी के थॉट को इन सेम वर्ड्स में हम लिखते हैं तो उस सूरत में इन्वर्टेड कॉमा का इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 4, कौसैन की अलामतें जुमला मुअतरज़ा के पहले और आखिर में लगाई जाती हैं। किसी जुमले की वजाहत कौसैन में लिखकर की जाती है। जुमला मुअतरज़ा यानी वो जुमला जिसका उस जुमले से कोई ख़ास ताल्लुक़ ना हो, यानी दो जुमलों के बीच में कोई एक छोटा जुमला आ जाए तो जब पहले या दूसरे जुमले की पहचान बताने के लिए तो उसको जुमला मुअतरज़ा कहते हैं। जुमला मुअतरज़ा की जगह देख लें किस तरीके से होगा। जैसे लिखा है लड़के के होठों पर उदास और मुस्कान थी। ये जुमला तो नहीं है लेकिन ये लफ्ज़ है। इसी तरीके से वजाहत के लिए वो जुमला लिख दिया जाता है कौसैन में, यानी ब्रैकेट को कौसैन कहा जाता है। जैसे लड़के के होठों पर उदास मुस्कान यानी मुस्कुराहट दौड़ गई। नंबर 4, अमली काम, अपने गरीब अमीर सभी दोस्तों से बराबरी का बर्ताव करें, यानी जो हक है दोस्तों का उसी के हिसाब से उनके साथ रवैया बरतें। दूसरा पॉइंट है इस तरह के दूसरी सबक आमोज़ कहानियाँ बच्चों को सुनाएं, यानी जो आप पढ़ते हैं इस तरह की कहानियाँ वो अपने से छोटे बच्चों को सुनाएं। बच्चों में गरीब और मजबूर लोगों से हमदर्दी का जज्बा पैदा करने वाली कहानियाँ सुनाएं, यानी उन कहानियों को याद करें और उन कहानियों को सुनाएं जिनसे बच्चों के अंदर गरीब और मजबूर लोगों से हमदर्द कहते हैं जो कोई किसी के दर्द में शरीक होना, हम सफ़र में शरीक होना, हम शक्ल एक जैसी शक्ल वाला होना, तो हमदर्द यानी जो किसी के दर्द में शरीक हो। जज्बा कहते हैं इमोशन। मजबूर लोगों से हमदर्दी का जज्बा पैदा करने वाली कहानियाँ सुनाएं। उम्मीद है कि ये सबक आपको समझ में आ गया होगा। किसी भी तरह की कोई मुश्किल पेश आती है तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर पूछें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।